I think the most innocent, prettiest, kind girls are taken for a ride in a reality show like that, and it's just sad for us. जब आप स्प्लिट्सविला के विला के बाहर आते हो तब आपको पता चलता है what exactly people have spoken about you in the VDs. 2026 में बहुत प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. मेरा अभी साउथ में एक डेब्यू आया है, कन्नड़ा डेब्यू. इट्स अ थिएटर रिलीज. प्लीज़ गो वॉच माई मूवी. द नेम इज़ ओरियो. थैंक यू. मैं बहुत अच्छी हूँ. आई एम वेरी हैप्पी. हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, आज 16 के सक्सेस पार्टी में आए हो आप, क्या कहना चाहोगे एपिसोड? I think the season is doing really well, and I think as a reality show contestant, it fills my heart with proud when I see people from reality show doing so good. So I'm very happy कि यहाँ पे सब लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, सब लोग आए हैं, and we have, I think, become friends with a lot of people from this season. So yeah, I'm happy and I'm rooting for season 16 of Splitsvilla, and I'll always root for Splitsvilla contestants. Yeah. मैं इसी के साथ साथ आपको जानना चाहूँगी, हमने घर के अंदर की कंट्रोवर्सी देखी, पर घर की बाहर भी बहुत कंट्रोवर्सी है। क्या आपने देखा जो अभी बाहर चल रहा है, जो ट्रोलिंग्स हो रही है, इवन आप जानते हो कि जो ट्रायंगल चल रहा है वो डिवोर्स The triangle, Ruru Yogesh and Akanksha का triangle, उसके बारे में I would just say I can relate a lot to Akanksha because I've been in a similar situation. I know that situation is the worst situation you can be in your life. It's the toughest spot because आप शो में अकेले छूट जाते हो, और मेरे साथ भी वही चीज़ होती थी. इनफैक्ट रूरू इज़ एटलीस्ट नॉट ग्रेट फ्रेंड्स एंड अ फ्लैटमेट ऑफ आकांक्षा. मेरी तो आई मीन व्हाट डू आई से, बट व्हाट इज़ ट्रू. मेरी तो फ्लैटमेट ही थी. तो I was heartbroken in my season, and I really hope I sympathize with Akanksha. I love that girl, and I really hope that she's in a good space right now. And I'm rooting for her definitely more than the pair because I have been in a similar situation, and I know it's just sad because I think the most innocent, prettiest, kind girls are taken for a ride in a reality show like that, and it's just sad for us. But she is killing it in the show, and I just wish that I did something like she did, but I was, I think, too heartbroken at my in my season. So Akanksha is doing great. Happy for her. बट इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगी, काफ़ी इसकी चीज़ें हमने घर के अंदर देखी, जो एक लव एंगल दिखता है, ये तो बाहर आने के बाद अनफॉलो फॉलो एक दूसरे के साथ हो जाता है, ये आखिर क्या गेम प्लान होता है या व्हाट हैपेंस? No, this is not a game plan. This happens as per the situations which you get in. Because जब आप घर के बाहर आते हो, घर के बाहर तो बिग बॉस का घर तो नहीं है, लेकिन जब आप स्प्लिट्सविला के विला के बाहर आते हो तब आपको पता चलता है what exactly people have spoken about you in the VDs, and that is why people react in a different way. And also when you see the show, that's when you realize कि okay, this was happening with me and this is how these people reacted, so these are my friends and these are my enemies. उस वजह से लोगों का परसेप्शन चेंज होता है. सो नथिंग इज स्क्रिप्टेड एवर इन स्प्लिट्सविला. इट्स जस्ट दैट कभी कभी आपको चीज़ें लेट से समझ आती है, इसलिए आपका रिएक्शन अलग निकलता है. एज पर वॉट इज इन द विला, इट्स डिफरेंट आउटसाइड. या पहले ही कंट्रोवर्सी जो आपकी रिगार्डिंग समथिंग, बट आपने न्यूज़ सुना होगा कि अपने पैर पे जो मैंने कुल्हाड़ी मारी थी, ऑफ कोर्स, बट हाँ. दोनों अलग हो चुके हैं, जो घर के अंदर एक अलग दिख रहा था, बाहर जो आंसर आए थे आपको लेकर, बट फिलहाल वो दोनों एक साथ नहीं है. मैं नाम लेना चाहता हूँ आवेश आपका. व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहना? I will always say the same thing. Nagma is an adorable girl. She's so kind, so beautiful, so humble. I love that girl. I wish her the best. And I think if they are not together, I don't know about it. But of course, I've heard. So if they are not together, I just wish Nagma all the best. And I think somewhere the truth gets out sometimes. And whatever is happening is because of that. And I just hope कि जिन लोगों ने मुझे उस टाइम पे गलत समझा था, they would know that what I went through that time. I think that's it. I don't want to say anything else on that topic. But I wish Nagma the best, definitely. And Karma does come back, yeah. यस, मैं साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगी, क्या कोई जब ये सारी चीज़ें बाहर आई कि किसी ने आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की कि ऐसा भी कुछ हुआ है, आप सही थे, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की गई थी, बहुत नेगेटिव लोगों ने बताया गया था, बट आप उस टाइम पे फिर भी स्ट्रॉन्ग थे, लोगों को आपने अपना सही बताया, बट राइट नाउ किसी ने अभी आपसे बात की उसके रिगार्डिंग या बातचीत हुई?
मेरे को DMs आते हैं लोगों के एंड इन द कमेंट सेक्शन आई गेट मेंशनड अ लॉट व्हेन पीपल से दैट शुभी वाज सो राइट एंड अभी तो लोग रील भी बना रहे हैं उस पर बोल बोल के वीडियोस एंड दे आर मेकिंग रील्स एंड दे आर सेइंग कि शुभी वाज सो राइट व्हेन शी सेड दोज थिंग्स एंड शी वाज ट्रोल्ड फॉर इट एंड आई वाज नेवर स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग आई जस्ट was upset about the fact because a girl is always blamed whenever she talks about a guy rather than the guy being questioned. That is the only thing I was very hurt about. But apart from that, I think जो लोग जानते थे उस चीज़ के बारे में because I was never wrong, they were always supporting me, they are still supporting me and मेरे को तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा गिल्ट या कुछ डर नहीं लगा था because I was totally right and I'm still right. I think the time proved my point. So yeah. थैंक यू मेरे फैंस के लिए मेरे फैंस के लिए यही कि इस साल 2026 में बहुत प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. मेरा अभी साउथ में एक डेब्यू आया है, कन्नड़ा डेब्यू. इट्स अ थिएटर रिलीज. प्लीज़ गो वॉच माई मूवी. द नेम इज़ ओरियो द ब्लैक एंड द वाइट एंड आई हैव प्लेड द लीड हीरोइन सो आई एम टेक्निकली एंड ऑफिशियली अ हीरोइन नाउ. सो गिव ऑल योर लव टू द मूवी एंड बहुत सारे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आगे भी मेरे. आई होप आई कीप मेकिंग यू ऑल प्राउड. And thank you for always loving me and supporting me and standing by me.